Hello guys. So class ninth B High book chapter 1 the fun they had with question answers we are going to discuss here. So are you enjoying your school life? Why I'm asking like this there that why are you enjoying school life? Because maybe these schools will not be in the future and human being teacher will not teach you, then how will you feel there? Suppose कीजिए कि आपको कोई ह्यूमन टीचर ना टीच करे और आपको कोई टीच करे मैकेनिकल टीचर मीन्स कोई मशीन्स आपको टीच करे तो आपको कैसा लगेगा? With the same feelings we are going to start the same chapter here in which you will come to know how is the life of the children and what will be our future. As you have seen in the animation there, see what is this? This is our present time. Like two children are sitting here, they are sharing their views, and the students are sitting in the classroom, and human being teacher is teaching here. But it is our future that only mechanical teacher means only machines are there and only one child is sitting on the chair and she is studying there alone, means robots are there, latest techniques are there, but she is alone. So if such kind of situation will be there, so how will you feel? What will be your schooling there? Will you go to school or not? The same we are going to learn in this chapter. If you would like to watch rest of the videos, you can subscribe the channel, go to the playlist and watch your all the chapters, writing section, grammar part, everything there on the channel. So let's begin the chapter. As this mind map is given to you, learning through computer, this is your future and the year is given 2157. This is 2157, but in which century we are? We are in the 21st century and the year is 2020. This year is 2020, but we are talking about the year 2157. So how will be the future? You can see there one boy is sitting alone with the computer, with the machine, and he is learning through the computer. Second, you can say there visual classroom, virtual classroom. Virtual classroom means here like you can say everywhere technology is used here, everywhere robot is there, okay, mechanical machine is there, teacher is there, okay. Secondly, one child is sitting on the chair using headphone and she is studying there. Next is their moving e-text, means everything will be connected with the technology and robot teacher will be teaching you, not a human teacher. So schools of future, schools of the future will be like this. So will you enjoy this one? Let's listen the story of one child, how she is feeling there. And who are they? Margie and her mother. Margie is a girl here and her mother also in the same chapter. Tommy is her friend. टीचर एंड चिल्ड्रन इफ द स्कूल, अगर स्कूल की बात हो और टीचर और चिल्ड्रन ना हो तो उसके अंदर कोई करेक्टर बनता ही नहीं है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर इज ऑल्सो प्लेइंग अ विटल रोल देयर. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन देयर. Summary of the chapter. How the summary of the chapter begin here? The story opens with Margie writing in her diary about an old book that Tommy had found. Story opens, ये जो story आपकी begin होती है, start होती है, वो कहाँ से start होती है? मार्गी जो girl है, writing in her diary, वो अपनी डायरी में, जैसे पर्सनल डायरी लिखते हैं ना, तो ऐसे ही मार्गी भी डायरीज लिखती थी और अपनी डायरीज में वो लिखती है किसके बारे में? एक इतनी पुरानी बुक के बारे में लिख रही होती है जो कि टॉमी को मिलती है. कहाँ पे मिलती है? एटिक पे मिलती है. एटिक मीन्स क्या होता है यहाँ पर? Attic is a space under the roof of a house often used for storing things. कि जब हम storing के लिए things को store करने के लिए, like attic is a room at the top of a house just below the roof. बिल्कुल roof के below, ओके बिल्कुल रूफ के बिलो, मतलब रूफ से थोड़ा नीचे जो होता है, जो स्पेस होता है जहां पर हम थिंग्स को स्टोर करते हैं, तो उस स्पेस में वेस्ट कहते हैं ना, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल हम डाल देते हैं, भी हमने अपने घर का कोई भी सामान है वो स्टोर कर दिया, तो ऐसे एटिक पे मतलब स्टोर करके रखा हुआ था. ऐसे स्टोर में बेकार कबाड़े में पड़ी हुई थी, वहां पर कूड़े कचरे में पड़ी हुई थी, ऊपर कबाड़ में वेस्ट में पड़ी हुई थी. तो वो बुक मिलती है टॉमी को एंड मार्गी जो उसी बुक के बारे में अपनी डायरी में लिख रही होती है. मार्गी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर
हर ग्रैंडफादर। अब जो मार्गी है उसको अपने ग्रैंडफादर की बातें याद आती हैं, हु हैड वंस टोल्ड, जो कभी कहते थे कि उनके ग्रैंडफादर क्या कहते थे कि वेंट टू एन एक्चुअल स्कूल, कि वो ना एक्चुअल के स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए जहां पर स्टूडेंट्स होते थे और ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाता था। तो ये सारी चीजें जो है अब मार्गी के लिए अनबिलीवेबल थी। क्यों अनबिलीवेबल थी? क्योंकि वो तो कैसे पढ़ रही है, देखो अकेले रूम के अंदर रोबोट भी है यहाँ पे, ओके, टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है और ये मैकेनिकल टीचर से यहाँ पे पढ़ रही हैं, उनके लिए तो सब कुछ स्क्रीन पे आता है, ठीक है, सारी चीजें स्क्रीन पे आती है, स्क्रीन पे पढ़ा देते हैं, स्क्रीन पे इनका टेस्ट होता है और सब कुछ स्क्रीन पे होता है, उनको एक अलोन रूम में बैठ के पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत अनबिलीवेबल होता है ये जानना कि भाई कभी पहले स्कूल होता था, एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें स्टूडेंट जो इकट्ठे होते थे और टीचर उनको पढ़ाता था, कोई ह्यूमन बीइंग टीचर। तो वो यहाँ पर सस्पिशियस होती है दैट कि कोई ह्यूमन टीचर इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो सारे सब्जेक्ट से पढ़ा दे। ओके, हाउएवर मार्गी एंड टॉमी लिव्ड इन द फ्यूचर वर्ल्ड, क्योंकि ये जो मार्गी और टॉमी है ना ये हमारे फ्यूचर में रहते हैं। अब हम कौन सी सेंचुरी में, 2020 में है, 24th सेंचुरी में, लेकिन ईयर हमारा 2020 है। बट ये जो एक्सपेक्टेशन है कि इस तरह का वर्ल्ड हमारा हो सकता है वो है 2157 ईयर है, जिस ईयर में हमारा फ्यूचर ऐसा हो सकता है। ओके, वेयर एजुकेशन वाज कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड, जहां पर एजुकेशन हमारी कंप्लीटली कंप्यूटराइज हो जाएगी। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, हम जैसे अब आजकल हम स्कूल में जाते हैं, टीचर में पढ़ाते हैं, ओके, होमवर्क करते हैं, चेक करवाते हैं, तो ऐसी जो रूटीन है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। Instead, they had a special study room where a computer taught them. मिस स्पेशल स्टडी रूम के बजाय क्या होगा कि वो जहां पर होंगे वहां पर अपने रूम में ही उनको कंप्यूटर पढ़ाएगा। मिस इस तरह से अब हमारे पास जो फोन आजकल हम करते हैं, अपने फ्रेंड से मिलना, फ्रेंड से बातें शेयर करना, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना, then this kind of things will not be happen in the future. The computer teacher was programmed and adjusted according to the needs of each child. अब ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम का जो टीचर होगा, जो कंप्यूटर टीचर होगा, ये जो कंप्यूटर टीचर होगा जो प्रोग्राम्ड किया हुआ है, जो कि ऑलरेडी एज ए रोबोट होता है यहाँ पे, वो एडजस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ईच चाइल्ड। हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा। नाउ एंड देन द कंप्यूटर टीचर डेवलप्ड फॉल्ट्स व्हिच वर फिक्स्ड बाय द कॉन्टी इंस्पेक्टर। कॉन्टी इंस्पेक्टर कौन है यहाँ पर, कि जो इसको सेट करता है, जो इसके अंदर प्रोग्राम्स को सेट करके देता है। इस कंप्यूटर टीचर के अंदर जो है जो भी फॉल्ट आता है, अब उसको कौन करेक्ट करेगा, काउंटी इंस्पेक्टर उसको काउंट कर उसको करेक्ट करेगा। बोथ टॉमी एंड मार्गी वंडर्ड एट द बुक फाउंड, और दोनों के दोनों जो टॉमी और मार्गी होते हैं बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं उस बुक को लेकर के, जो कि टॉमी को एटिक पे मिलती है। एटिक आई ऑलरेडी टोल्ड यू देयर वेयर दैट अंडर द रूफ, अ स्पेस अंडर द रूफ वेयर वी आर कीपिंग आवर स्टोरिंग थिंग्स। They wondered at it as they read books on the screen of their computer teacher. भी उनके लिए तो वंडर हो गई। देखो 2157 जो हमारा फ्यूचर है, वो लोग क्या है, कंप्यूटराइज है, कंप्यूटराइज पढ़ते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे उनका सब कुछ आता है, स्क्रीन पे टीचर उनका टेस्ट लेता है, वो यहाँ पर बोरिंग भी फील करते हैं, बट फिर भी उनको जो है ये बहुत अजीब बात लगती है कि कभी पेपर पे जो प्रिंटिंग है उनको लेकर के, देखो जैसे यहाँ पर है कि एक बुक है हमारे पास, बुक पे पेपर्स प्रिंट किए हुए हैं और उसको हम आपस में बैठ के पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, खाना खाते थे और यहाँ पर हर तरह का फन होता था। तो ये सारी चीजें देख करके वो जो बहुत सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ स्क्रीन पे मिलता है, स्क्रीन पे उनको टेस्ट देना होता है, लिखने की उनको जरूरत होती ही नहीं है। मार्गी फेल्ट दैट द कंप्यूटर टीचर वाज बोरिंग। भाई मार्गी को तो वो टीचर बड़ी बोरिंग लगती है कंप्यूटर पे, जो सो स्क्रीन पे उसके सामने आता है, क्योंकि वो उसको डिसलाइक क्यों करती है, शी डिसलाइक्ड द मैकेनिकल टीचिंग एंड लर्निंग। भाई क्यों वो करती है इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या, जो टीचर एक तरह से रोबोट की तरह, वो उनकी फीलिंग्स नहीं समझता, उसको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, पढ़ा के चला जाता है, चाहे बच्चों को समझ आए या ना आए। ओके, सेकेंडली क्या है कि वो कंटिन्यूसली टेस्ट भी लेते हैं, असाइनमेंट्स भी देते हैं और प्रॉपरली चेक भी करते हैं, तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स नहीं मिल पाता। मिस ये टीचर जो बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर फन नहीं दे पाते। शी डिसलाइक द मैकेनिकल टीचिंग एंड लर्निंग, भी बिल्कुल डिसलाइक करेगी, बिल्कुल ऑब्वियसली करेगी। शी ऑल्सो वंडर्ड हाउ मच फन इट वुड बी स्टडिंग इन अ स्कूल। अब वो ये सोच सोच के परेशान होते कि देखो स्कूल में जाते थे बच्चे, एक पहले कभी कोई बिल्डिंग हुआ करती थी, जिस बिल्डिंग में वो स्कूल बोलते थे और स्कूल में जो वो
टीचर भी आते थे, बच्चे भी आते, जैसे आजकल हम जाते हैं 2020 में ईयर में, ठीक है। बट यहाँ पर वो बड़ी हैरान होती चीजें सोच रही कि वो यहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर जो वो गैदरिंग होती थी उनकी, स्टडिंग इन अ फन वे, और पढ़ते भी थे बड़ा मजाक करके, बड़ा फन करके, बड़ा एंजॉय करके यहाँ पे पढ़ते थे। कैसे एंजॉय करते थे यहाँ पे? they were enjoying with their friends, they were playing with their friends, okay, they were even studying with their friends, so they were getting study in the fun with other children, and that too from a human teacher, और वो उनको जो टीचर थे वो भी कौन थे? ह्यूमन टीचर से। तो यहाँ पे जो मार्ग बहुत ज्यादा क्या होती है, सरप्राइज होती है कि हमारा जो पास्ट था, क्योंकि वो जो 2157 है वो तो उनका प्रेजेंट है, और उनके लिए जो जिस लाइफ में आज हम है वो उनके लिए क्या है? पास्ट है। तो उनको लगता था कि उनका पास्ट कितना अच्छा था, उस टाइम में कितना फन हुआ करता था, एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द लेसन इज द फन दे हैड, कि कितना एंजॉय करते थे वो पहले, वो अपने पास्ट को यहाँ पर याद करते हैं। बट जो 2157 है ये हमारा क्या है? फ्यूचर है। बट मार्गी और टॉमी के अकॉर्डिंग क्या है? वो उनका प्रेजेंट है और हम उनका पास्ट बन जाएंगे, ठीक है। So how now the turn is of question answers. How old Margie and Tommy are there? Margie and Tommy live in the future, क्योंकि वो फ्यूचर में रहते हैं। कौन से ईयर में? 2157 ईयर में। They are neighbors, वो पड़ोसी हैं, and spend time together, दोनों के दोनों टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। Margie is a girl of 11 years age and Tommy is of द बॉय 13, तो जो टॉमी की एज है 13 इयर्स है, एंड मार्गी की एज कितनी है? 11 इयर्स, ओके। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी? क्या लिखते हैं भाई वो? ऑन 17th May 2157 डेट को मार्गी रोट दैट द डे टॉमी दैट हैड फाउंड अ रियल बुक। अब यहाँ पर जो टॉमी को जो बुक मिलती है उस बुक के बारे में वो यहाँ पर लिखती है दैट व्हाट काइंड ऑफ बुक वाज दैट which he found in the attic of his house. Who found it? Tommy found this book. It was old book with yellow crinkly pages. भाई उसके पेज बिल्कुल येलो हो चुके थे, फटे हुए से हो चुके थे, बिल्कुल जैसे होते ना कि गलने को होते वो गल जाती है, तो ऐसी वो बुक होती है। क्यों? क्योंकि भाई स्टोर रूम में पड़ी थी, कोई वैल्यू ही नहीं थी उसकी, वो तो बहुत पुरानी बुक थी, उसको ऐसे स्टोर में फेंक दिया गया था। Had Maggie ever seen a book before? इससे पहले कभी उसने बुक देखी थी? बिल्कुल भी नहीं देखी थी, क्योंकि उनके सामने बुक, पेंसिल, पेन, कॉपी का कोई मतलब ही नहीं था। उनको ना कहीं पे स्कूल में जाना होता था, ना पेन, कॉपी, पेंसिल की जरूरत होती थी, ना उनको लिखना होता था। उनको जस्ट टाइप करना होता है स्क्रीन के ऊपर, अपना पेपर टाइप करके देना होता था, अपना होमवर्क भी टाइप करके देना होता था। नो, मार्गी हैड नॉट सीन अ बुक, उसने पहले कभी बुक देखी नहीं। बिफोर द वन फाउंड बाय टॉमी इन हिज हाउस, शी हैड only heard from her grandfather that his grandfather went to school. उसने सिर्फ अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि कभी कहीं पे एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसका नाम स्कूल था, और वहां पर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही यहाँ पर जो बड़े सारे बच्चे गैदरिंग में आते थे और बुक्स को रीड करते थे। बुक्स पे ही अपना प्रिंटेड पेपर्स होते थे जिनको वो पढ़ते थे यहाँ पर, और अपना होमवर्क करते थे और उसको लिखते थे यहाँ पे। Fourth question, what things about the book did she find strange? Books के बारे में उसको क्या चीज strange लगी? As Margie lived in the era where students studied from the mechanical teacher. अब भाई मार्गी तो ऐसे वर्ल्ड में रहती है, ऐसी दुनिया में रहती है, ऐसी सेंचुरी में रहती है जहाँ पर कि मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाता है, and all the books appeared on the screen, और जो भी बुक होती है, जो भी कंटेंट होता है, that appear on the screen only. So she found it strange that the words on the printed book, अब वो उनको बड़ा strange लगता है कि कभी कोई बुक होती थी और बुक के अंदर प्रिंटेड पेजेस होते थे, एंड डिड नॉट मूव, और वहां से मूव भी नहीं कर सकते थे वर्ड्स। क्यों? क्योंकि प्रिंट हो गए तो मूव थोड़ा ना करेंगे वर्ड्स वहां से। इट वाज स्ट्रेंज टू सी द सेम वर्ड्स अपीयर ऑन द पेजेस एज शी फ्लिक्ड them over, और यहाँ पर सेम उन्हीं वर्ड्स को देख के वो हैरान होते कि जो पेज हमारी स्क्रीन के ऊपर, जो वर्डिंग हमारी स्क्रीन के ऊपर चलती रहती है, मूवमेंट में होती है, लेकिन वही जो वर्डिंग थी वो पहले की जो बुक होती थी उसके अंदर लिखी हुई थी। What do you think टैली बुक इज? टैली बुक क्या होता है? टैली बुक तो इलेक्ट्रॉनिक बुक होगी यहाँ पर। अ टैली बुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक ऑल्सो नोन एज ई बुक। ई बुक, ई लर्निंग, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, ई मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक को क्या बोलते हैं? टैली बुक यहाँ पे बोलते हैं।
इट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर, कहाँ पे स्टोर होगी भाई, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक है तो ये किस में होगी, कंप्यूटर में होगी। एंड कैन बी रीड, और उसको रीड किया जा सकता है बाय स्क्रॉलिंग अप और डाउन ऑन द स्क्रीन। जैसे हम कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ते हैं कि हम स्क्रीन को अप और डाउन जो वो स्क्रॉल करते हैं पढ़ने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर जो है क्या था कि एक टैली बुक थी जिसको पढ़ने के लिए उनको स्क्रॉल को अप और डाउन करना होता था। बट वो बुक क्या थी, उस बुक में कोई स्क्रॉल डाउन नहीं करना था, बुक में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ था, उसके बस पेजेस ही उनको टर्न करने होते थे। Where was Margie's school? Margie's का स्कूल कहाँ था भाई? Did she have any classmate? क्या उसका क्लासमेट था कोई? भाई मार्गी का स्कूल तो उसका घर था, घर में इसका एक रूम था, उसी रूम में बैठ के उसको पढ़ना होता था। She had, क्या उसका कोई क्लासमेट था? It was a room next to her bedroom, और उसके बेडरूम से अगला रूम था जिसमें उसको पढ़ना होता था। इट वॉज अ पर्सनल क्लासरूम, भाई पर्सनल क्लासरूम है, उसके क्लास में कोई बच्चा हो ही नहीं सकता, और क्लास में बच्चा नहीं होगा तो क्लासमेट कहाँ से आएगा। और रही बात टॉमी की, तो टॉमी तो उसका नेबर में फ्रेंड था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? भाई किस तरह के सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं यहाँ पर? मार्गी एंड टॉमी लर्न अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पर लर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड्स? किसने कहा कि मैं इसको नहीं फेंकने वाला? टॉमी ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो बुक थी उनके पास, वो बुक को क्यों फेंकने लगा? व्हाट डज इट रेफर टू? इट का मतलब क्या है यहाँ पर? इट रेफर्स टू द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन विच टॉमी रीड्स वेरियस बुक्स। जो था यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन थी जहां पर उनको बड़ी सारी बुक्स जो है अवेलेबल हो जाती थी। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? इसको किसके साथ कंपेयर किया भाई? इट इज बीइंग कंपेयर टू अ पेपर बुक, इसको एक पेपर बुक से कंपेयर किया गया, दैट टॉमी फाउंड इन हिज हाउस, जो कि टॉमी को अपने घर पे एटिक पे मिलते हैं, जहां पर की स्टोर किया हुआ मटेरियल पड़ा होता है। श्योर दे हैड अ टीचर, उनके श्योरली उनके पास कोई टीचर होगा, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर तो नहीं होगा ना, इट वाज अ मैन, ये कोई मैन होगा। हु डज दे रेफर टू? दे मीन्स कौन है यहाँ पे? दे रेफर्स टू एंसेस्टर्स ऑफ द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के एंसेस्टर्स थे, उनके फोर फादर्स थे, जो कि कभी स्कूल में जाते थे, स्टडी करते थे, उनको कौन पढ़ाता था? ह्यूमन टीचर पढ़ाता था। व्हाट डज रेगुलर मीन? या रेगुलर का मतलब क्या भाई यहाँ पे? रेगुलर मीन्स क्या कि मैकेनिकल टीचर जो उनको रेगुलरली पढ़ाता है। किनको पढ़ाता है? मार्गी एंड टॉमी को जो पढ़ाता है। व्हाट इज द कंट्रास्टेड विद? कंट्रास्टेड विद मीन्स क्या है यहाँ पर? मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्टेड विद ह्यूमन टीचर, क्योंकि यहाँ पर कंट्रास्ट किसका है? यहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो है वो उनका है, और हमारा क्या है? ह्यूमन टीचर, जैसे हम स्कूल में आके पढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी है? अभी किस तरह का टीचर था उनका? ऑब्वियसली मैकेनिकल टीचर था उनका। कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको पढ़ना होता था, कंप्यूटर स्क्रीन पे उनको सब कुछ मॉल फंक्शन होते, मतलब मॉल फंक्शन मींस बहुत सारे फंक्शन उनके होते थे जिनको क्लिक करते जाओ और पढ़ते जाओ। Why did Margie's mother sent for a काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर को मार्गी की मदर ने क्यों भेजा? क्योंकि उसके अंदर कुछ फॉल्ट आ गया था, और मार्गी की मदर ने उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा, तो उसको लगा कि भाई यहाँ कई दिनों के लिए छुट्टी हो गई है, अब कई दिनों तक पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने बड़ी जल्दी उसको चेक कर दिया, एंड मार्गी वाज फेलिंग द जियोग्राफी टेस्ट रिपीटेडली। जो मार्गी थी वो बहुत ज्यादा फेल हो रही थी, किसमें? जियोग्राफी के टेस्ट में, विच कुड बी ड्यू टू अ फॉल्ट, जो कि फॉल्ट हो सकता था उस टीचर का। किसका? मैकेनिकल टीचर का। व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज ट्रेंड टू रिपेयर, विद काउंटी इंस्पेक्टर है वो तो ट्रेंड होगा ही क्या करने में? कंप्यूटर्स को रिपेयर करने में। एंड ही ओपन द मशीन, उसने मशीन को ओपन किया, उसको चेक किया, उसके जियोग्राफी सेक्टर को चेक किया, और उसके जो हायर लेवल था सब कुछ चेक करके फटाफट से उसको ठीक करके उसे दे दिया। The next is why was Margie doing badly in geography? ज्योग्राफी में उसकी बैड परफॉर्मेंस क्यों थी? क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। किसके अंदर फॉल्ट आ गया था? फॉल्ट आ गया था उसके मैकेनिकल टीचर के अंदर। और जो काउंटी इंस्पेक्टर उसने जल्दी से, उसकी मदर ने जब उसको बुलाया, एंड दैट मार्गी वाज नॉट एट फॉल्ट, कि मार्गी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो तो काफी अच्छी है, इसको दोबारा से रीसेट कर दो, भी आपका मैकेनिकल टीचर में कोई ना कोई फॉल्ट है। जैसे कहते हैं ना, अभी बच्चे की गलती नहीं है, टीचर की गलती है, तो यहाँ पे भी मैकेनिकल टीचर की गलती है कि वो अच्छे मार्क्स नहीं दे रहा था। मार्गी की मिस्टेक यहाँ पे नहीं थी, और इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को यहाँ पे बुलाया, सो दैट ही कुड रिपेयर दैट।
What had once happened to Tommy's teacher? Tommy की टीचर को एक बार क्या हुआ भाई? Once Tommy's teacher had developed the fault as the entire section on history. भाई एक बार क्या हुआ टॉमी की टीचर को? टॉमी की टीचर ने क्या किया? फॉल्ट दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर एंड हैड बीन डिलीटेड. जो सेक्शन है हिस्ट्री का वो अपने आप से डिलीट कर दिया. एंड हिज टीचर हैड बीन टेकन फॉर रिपेयर्स एंड इट टुक देम अ मंथ टू सेट इट राइट. और भाई जो टॉमी था देखो उसके तो जो कंप्यूटर टीचर था उसको लगा 1 मंथ उसको रिपेयर करने में, बट मार्गी का जो कंप्यूटर जो टीचर था मैकेनिकल टीचर था वो बहुत जल्दी से वापस आ गया था ठीक होकर के. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो वाई? मार्गी स्टडी एट द सेम टाइम भी उसका तो शेड्यूल था यहाँ पर, जैसे तो कंप्यूटर के अंदर शेड्यूल होता है कि आपको इतने बजे ये काम करना ही करना है तो करना ही करना है. मींस सैटरडे और संडे 2 डेज ऑफ होते थे, बाकी मंडे टू फ्राइडे उसका रेगुलर टाइम होता था कि इतने बजे क्लास है तो है, वो स्टार्ट कर देता था. हर मदर वॉज वेरी particular and had told Margie that she would learn better if she studied at same time every day. कि अगर वो सेम टाइम पे हर रोज पढ़ेगी तो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. किसने कहा? उसकी मदर ने. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? अब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को उसने कैसे डिस्क्राइब किया कि यहाँ पर पहले एक स्कूल एक बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग को स्कूल बोलते थे, वहां पर एक मैन ह्यूमन बीइंग एक टीचर होता था जो कि सारी चीजें उनको पढ़ाते थे और उनको काम भी देते थे, उनका टेस्ट भी होता था, उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे. और जो मैन टीचर है वो क्या था? उसके अंदर बहुत नॉलेज होती थी जैसे कि मशीन टीचर के अंदर होती है. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को उसने कैसे डिस्क्राइब किया कि ओल्ड टीचर्स जो है वर नॉट द रेगुलर काइंड दे हैड, वे वो रेगुलर काइंड नहीं होते थे, और दे वर ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट मशीन, वो ह्यूमन बीइंग्स होते थे, मशीन्स वो नहीं होते थे. The next long question is that what are the main features of the mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? भाई यहाँ पे आपको इस स्टोरी के अकॉर्डिंग बताना है कि मार्गी और टॉमी जो किस तरह के स्कूल में कहाँ पे पढ़ते थे, कैसे वो करते थे. तो उनको कौन पढ़ाता था भाई? मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था. और उनकी जो बैक स्क्रीन होती थी वो चलती रहती थी, उनके ऊपर लेसन अपेयर होते रहते थे, और लेसन भी जो उनके अंदर क्वेश्चंस आते रहते थे, स्टूडेंट्स को उनको इंसर्ट करना होता था. होमवर्क किया, टेस्ट किया, पेपर किया और फटाफट से उसको क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया. दे हैड टू राइट डाउन द वर्क इन अ पंच कोड, उनको पंच कोड में उसको राइट करना होता था, विच वॉज अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज. कंप्यूटिंग लैंग्वेज है जिसमें उसको वहीं पे नोट करना होता था, उनको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं होती थी. द मैकेनिकल टीचर चेक्ड द पेपर, और जो मैकेनिकल टीचर थी फिर वो उसको पेपर को चेक करती, उसको मार्क्स देते थे बिल्कुल सेकेंड्स में. देख these classrooms were in the students home, और ये जो क्लासरूम थे उनके स्टूडेंट के घर पे होते थे, एक सेपरेट रूम में सारा सिस्टम लगा होता था, और हर स्टूडेंट को यहीं पर अपने मैकेनिकल टीचर से पढ़ना होता था. और जो हर टीचर था वो एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लर्नर, लर्नर के लेवल के अकॉर्डिंग उस मशीन को सेट कर दिया जाता था कि वो कैसे कैसे पढ़ सकता है. दे डिड नॉट हैव क्लासमेट, उनके तो भाई क्लासमेट हो ही नहीं सकते क्योंकि वो स्कूल बिल्डिंग में तो होते नहीं थे, तो सिंगल रूम में एक ही बच्चा बैठ करके पढ़ता था, उनका कोई क्लासमेट नहीं हो सकता था. और ये जियोग्राफी, हिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाते थे. यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथ्स थे. और मार्गी स्टडीड एवरी डे एट होम, भी मार्गी को भी रोज रोज उसी टाइम उसी जगह पे बैठ करके मतलब पढ़ना होता था, एक्सेप्टिंग सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को छोड़ के. हर मदर सेड दैट शी वुड लर्न बेटर इफ शी स्टडीड दैट वे, उसकी मदर क्या कहते हैं कि अगर तुम बिल्कुल इसी रेगुलर वे से पंक्चुअल वे से पढ़ोगी तो तुम्हारी स्टडी काफी अच्छी जाएगी. And the next is the why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? भी वो अपने स्कूल से हेट करते, बोरिंग फील करते, क्योंकि वो जो मैकेनिकल टीचर है हमेशा उसको टेस्ट देती है, ऑन द टाइम उसको क्लास लेनी होती है, ऑन द टाइम उसको टेस्ट सबमिट करना होता है, फिर वो मार्क्स देती है, क्योंकि वो बोरिंग सा हो जाता है, कोई स्कूल में नहीं है, कोई क्लासमेट नहीं है, अकेले बैठ के पढ़ना होता है. लेकिन वो ये सोचते भी जो हमारे स्कूल थे, जो पहले स्कूल थे वो कितने अच्छे होते थे, बच्चे भी होते थे, खेलते थे, उनके साथ पढ़ते थे, तो कितना एंजॉय वो यहाँ पे करते थे. सेम थिंग यू हैव टू राइट इन द सेम आंसर. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स विद द चैप्टर समरी. I guess everybody would understand this one. Then give a thumbs up to the video and have a nice day.